जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। मुझे राजनीति पर बोलना पड़ेगा, तो मैं कतरा रहा था क्योंकि राजनीति पर बोलना आजकल खतरा है और खतरे से मैं बचना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह जी, विजेंद्र गुप्ता जी, मुझे माफ करिए, पॉलिटिक्स डिवाइड्स, राजनीति लोग को बांटती है, खेल लोगों को जोड़ता है। और यह मुझे लगता है हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ी एक तरह से कमी है कि हमारे नेता जो है हमें डिवाइड एंड रूल करते हैं, बांटते हैं। हिंदू वोट बैंक, मुस्लिम वोट बैंक, दलित वोट बैंक, यादव वोट बैंक पर वोट बैंक, और चुनने के बाद मनी की भी वोट बैंक होती है। देयर इज अ पैसे की भी वोट बैंक होती है। देयर इज अ वोट बैंक ऑफ नोट्स। स्पोर्ट्स इज डिफरेंट। आई डोंट नो हाउ मेनी, आजकल तो रील्स का जमाना है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिसेंटली सॉ अ वंडरफुल रील या वंडरफुल वीडियो विच वेंट वायरल। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द रणजी ट्रॉफी, जो क्रिकेट की सबसे बड़ी डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, after about almost 100 years, for the first time Jammu and Kashmir has reached the final of the Ranji Trophy. And remember, Jammu and Kashmir, नेता जो है वो जम्मू और कश्मीर को जोड़ नहीं सकते। They are not able to bring Jammu and Kashmir together. कश्मीर वैली विल वोट इन वन डायरेक्शन, जम्मू विल वोट इन अनदर। और इनको मजा भी आता है क्योंकि इनकी राजनीति उसी पर चलती है। आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, आई एम सेइंग पॉलिटिक्स इन जनरल। बट इफ यू सॉ द वीडियो दैट वेंट वायरल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर टीम, there were Kashmiri Muslims, there were Hindu Dogras, there were Kashmiri Pandits, they were all Indians and they were celebrating together. I have not seen in Jammu and Kashmir the BJP and the Congress and the NC and other parties working together. No. But on the sports field, I have seen the players come together, which is the first lesson I think that politicians can learn from what happens in stadiums. Sports unites where politics divides. And we are now in what we call the WhatsApp university. Not MidSoc, but WhatsApp. You get a message on WhatsApp in real time, you forward it to your friend without even finding out whether it is real or false. You are right, democracy is being undermined by misinformation. Democracy is being undermined by polarization. तुम देशद्रोही हो, तुम देशभक्त है. Who has given any of these leaders the right to give you a certificate? कौन होते हैं नेता आपको सर्टिफिकेट देने के लिए? You are a true Indian if you follow the constitution of the country. I believe there is only one holy book in this country. It is not the Gita, it is not the Quran, it is not the Guru Granth Sahib, it is the Constitution of India. And if you are able to ensure that you work according to the Constitution of India, then I believe all these threats will disappear. These threats are external and internal. There's an institutional threat and an external threat, but the Constitution gives you the power against those threats. We have to ensure we believe and trust the Constitution and follow it. Country in the world. इस देश की सबसे बड़ी ताकत इसकी विविधता है. And in a diverse society like ours, every day is a new day. इस देश में कौन जाने कल क्या हो. I always refer to the famous song of Kishore Kumar to define India. जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना. So in journalism, nothing startles me. In India, nothing startles me. Nothing is permanent in India. Who knows what tomorrow brings? So after all these years, the only reason I remain enthusiastic is because I believe that I do journalism in the best country to do journalism, that is India. हमको गाली खाना जो है बुरा नहीं लगता, क्योंकि निंदक नीरे राखी एक आंगन कुटी छवाए. तो हम लोग तो निंदकों को पास में रखना चाहिए. जब तक निंदक आपके साथ में नहीं रहेंगे
तब तक आप अपनी बुराइयों को महसूस नहीं कर पाएंगे, सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। इसलिए हम हमेशा से इस बात को कहते हैं, आलोचना अच्छी बात है, आलोचना होना चाहिए, लेकिन आलोचना से वैमनस्यता नहीं बढ़ना चाहिए। और यहीं स्टेडियम की स्पोर्ट्समैनशिप आती है। साथियों, मैं मेरी स्कूल टीम का हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल तीनों का स्कूल टीम में था। स्क्वॉश रैकेट्स के लिए मैं अपने कॉलेज में तो था ही नंबर 1, मध्य प्रदेश का नंबर 1 था, सेंट्रल जोन का नंबर 1 था। सीसीआई में, राजदीप, यू कैन सी देयर इज अ कोर्ट इन सीसीआई where I have opened that court, I've opened that court, and I participated in the nationals. I reached semi-finals, but I was defeated in semi-finals. Probably if I had sort of given up my studies as an engineering student and played more squash, probably I would have come in the first ranking. But still, the point I'm trying to make is that to me, in my young and student days, politics was not an issue. It was sportsmanship. अगर हम स्पोर्ट्स को ये मानते हैं कि ये बेस लाइन है और उसके अंदर जो आइडियल सिचुएशन है वो राजनीति में आनी चाहिए, तो हमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाने होंगे जो हमें उस और आकर्षित करे। और उसके लिए नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, जिसकी बात मैं हर मंच से करता हूं, अभी लखनऊ में ऑल इंडिया स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस थी, मैंने बहुत शिद्दत से अपनी बात को वहां कहा, दिल खोल कर कहा, और देश के लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी मंच पर थे और उन्होंने मेरी बात को बहुत ध्यान लगाकर सुना। सभी स्पीकर्स ने बहुत ध्यान लगाकर सुना और उसमें एक सॉल्यूशन था कि जैसे नेशनल हेल्थ इंडेक्स बनता है, जैसे नेशनल एजुकेशन इंडेक्स बनता है, हर राज्य का परफॉर्मेंस उस इंडेक्स के माध्यम से हम समझते हैं कि उस राज्य का एजुकेशन लेवल क्या है, किसी राज्य का हेल्थ मॉडल क्या है, उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है, वो किस प्रकार की सर्विसेज दे रहा है, और उसका एक डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है। क्या ये सब लेजिस्लेशन में नहीं होना चाहिए? अगर आज पॉलिटिक्स क्या है, क्या डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि एक इलेक्शन होगा, दिग्विजय की पार्टी बार बार हार जाएगी, 4 सीट 2 सीट वाली बन जाएगी उत्तर प्रदेश में और बिहार में, और फिर बड़े बड़े भाषण भी होंगे। इसके पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं, इसको भी समझना चाहिए पार्टियों को। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सिर्फ चुनाव डेमोक्रेसी में हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जनता सरकार चुनती है। जनता सरकार चुनती है किनकी? जिनके पास बहुमत होता है। उस बहुमत में कुछ लोग मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनता है, वो एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, कार्यपालिका का हिस्सा हो जाते हैं। लेकिन जो फ्लोर है असेंबली का, वो किसी एक पार्टी का फ्लोर नहीं है, वो सबका है, वो संगम है हर विचारधारा का। उस फ्लोर पर कोई दल 10% उसकी हिस्सेदारी है चुनाव के बाद, किसी की 15% हिस्सेदारी है, किसी की 20% हिस्सेदारी है, लेकिन उस फ्लोर पर हर विचारधारा का स्थान है। फ्लोर पर अगर डिस्कशन होगा, डिबेट होगी, शोर नहीं होगा। आज राजनीति का स्तर कितना गिर रहा है, किस लेवल पर आ गया है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है। शोर मचाओ, हाउला करो, सदन में को चलने मत दो, अगले दिन अखबारों की सुर्खियां होगा। मुद्दा क्या है?
डिबेट क्यों नहीं है, वार्तालाप क्यों नहीं है, तर्क वितर्क क्यों नहीं है, इसको कोई क्रिटिसाइज नहीं करता। ये कोई एक के आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। जनता का फैसला सर्वोपरि है। जनता का फैसला भगवान का, ईश्वर का आदेश है, उसको पालन तो सबको करना पड़ेगा। फिर जो हारेगा उसको भी, जो जीतेगा उसको भी। ये स्पोर्ट्स की बात जब हम करते हैं तो इसमें बड़ा साफ है कि इसमें कौन लोग विपरीत परिस्थितियों में देश को और समाज को संकट से बाहर ला सकते हैं। तब होती है टीम के कप्तान की पहचान। ये टीम वर्क, ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन की बात अगर होती है तो स्पोर्ट्स हमको बताता है कि हमको सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं, हमें टीम भावना से खेलने की जरूरत है। जब स्टेडियम में कोई खिलाड़ी बाउंड्री पर कैच पकड़ता है, 50 मीटर से दौड़ता हुआ आता है और चीते की तरह कैच पकड़ता और लुढ़क जाता है, तो पूरा स्टेडियम ये नहीं कहता ये फलानी जात का था, ये फलाने प्रदेश का था। एक ही आवाज गूंजती है, इंडिया इंडिया इंडिया।